Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story about the donkey on wheels. Gadha on wheels means पहियों पर. So this is a story through which you can learn how to speak English language because this is the most suitable way, the most interesting way, and the most smartest way to learn how to speak English language because you have information, you have words, and you have the way of making sentences. Then you can narrate this story to anyone, or you can teach this story in your classes, or any student can narrate a story in front of anyone. And through that process, by doing this, he one day would come when he will be able to speak English language. He will be able to narrate anything what is actually happening in front of him, or what he is reading something in books. He can easily narrate that, or express that, or converse with anyone in English easily. So this is the smartest way, and I am telling this story to you. So come with me and learn this story. So before starting this story, I have told you many times that this is the era where the English language is becoming the most important language, and it is becoming the compulsory language. And in our India, in every schools and colleges, English is taught as a compulsory subject, and but as a compulsory language it is not taught. And I think that if you don't know how to speak English language, it means actually you don't know the English, because the biggest part of a language is speaking, and until you don't know that, then you can't say proudly to yourself that you know that language. So dear, if you want to know English language very well, so visit to my channel and learn it very well. Okay, come to me and learn it. I'm going to start this story. This is the story, the donkey on wheels, Gadha पहियों पर. I will teach this story bilingually first, and then after I will narrate the story in my own words in front of you. So first, let's study story bilingually. There was once a poor little donkey. There was एक बार एक बेचारा छोटा गधा था. पुअर मीन्स गरीब नहीं, बेचारा कहेंगे यहाँ पे. क्योंकि देयर इज दिस वर्ड पुअर इज ऑलवेज यूज इन फ्रंट ऑफ इवन रिच पीपल. धनी लोगों के पहले भी प्रयोग किया जाता है पुअर, जैसे पुअर अंबानी, बेचारा अंबानी. ओके, सो देयर वॉज वंस अ लिटिल डंकी. एक बार एक बेचारा छोटा गधा था. ऑन व्हील्स, व्हील्स मतलब पहियों पर. इट हैड नेवर वैग्ड इट्स टेल. इसने कभी, वैग मीन्स हिलाना, इट्स टेल मतलब अपनी पूंछ. इसने कभी अपनी पूंछ नहीं हिलाई. आर टॉस्ड इट्स हेड, या अपना सिर उछाला या झटका मारा अपने सिर पर. आर सेड, या कहा हो ही हा, या कहा हो ही हा मतलब रेंगना भी नहीं किया, अर्थात चिघाड़ा भी नहीं, या कभी भी अपने जो चिल्लाहट की आवाज होती है गधे की, वो नहीं किया कभी. आ टेस्टेड टेंडर थस्टल, या टेस्ट लिया हो. आ टेंडर नरम, थस्टल मतलब होता कांटेदार पौधों को, कभी टेस्ट नहीं किया. इट ऑलवेज वेंट अबाउट, वह सदैव चलता रहता था. एनीवेयर, कहीं पर भी. दैट एनीवन पुल्ड, जहां कोई भी उसे खींच कर ले जाता था. ऑन 4 वुडन व्हील्स, 4 लकड़ी के पहियों पर. कैरिंग अ फुलिश नाइट, में लेके वो चलता था. किसको? जिसमें लेके चलता था एक मूर्ख. पुलिस मतलब मूर्ख, नाइट मतलब सरदार को. हु ओर अ लार्ज कॉक्ड, जो पहने हुआ होता था अ लार्ज, एक बड़ी कॉकेड. कॉक्ड नहीं, कोकेड. कोकेड मीन्स कोकेड हैट. कोकेड हैट का अर्थ होता है क्या जानते हैं? कोकेड हैट का मतलब होता है तीन नोक वाला क्या, टोपी. जैसे एक आगे, वन इन फ्रंट, and one is back, and one is at head towards the sky. So that kind of cap he used to hat he used to wear, वो ऐसी टोपी पहना करता था. and a long cloak, और एक बड़ा
लंबादा 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 मीन्स होता है एक मोटा कपड़ा जो पहने होते हैं और घुटनों तक जाता है और शरीर को गर्म रखता है। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो लेग्स, क्योंकि उसके कोई पैर नहीं था, साथ उसको बिना पैरों वाला था। कौन? सरदार। नाउ अब अ मैन हु हैज नो लेग्स, एक ऐसा व्यक्ति के कोई पैर नहीं है, एंड राइड्स अ डंकी, और एक गधे की सवारी करता है, ऑन व्हील्स पहियों पर, हैज लिटिल काज ऑफ फॉर प्राइड, उसके पास कह सकते हैं कि अ लिटिल काज फॉर प्राइड, गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास, छोटी चीज भी नहीं थी जिससे वो अपने ऊपर गर्व करे। फिर बट द नाइट वॉज हाटी, हाटी मीन्स होता है घमंडी, हाटी मीन्स घमंडी, लेकिन सरदार क्या था? घमंडी था। एंड सेल्डम रिमेम्बर्ड, और कभी नहीं याद करता था हिज सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियों को कभी नहीं याद कर। सो द डंकी सफर्ड सोरली, अतः जो डंकी गधा था सफर्ड हिलता था या कष्ट में रहता था, सोरली बहुत बहुत बुरी तरह कष्टमय जीवन व्यतीत करता था। एंड इन मेनी वेज, और कई तरीके से भी वो कष्ट में रहता था। वन डे, एक दिन, द डंकी एंड द नाइट वर ऑन द टेबल, एक दिन डंकी और जो गधा था और नाइट और जो सरदार था वो बैठे थे। टेबल, टेबल ऑन द टेबल मीन्स होता है, ऑन द टेबल होना मतलब साथ साथ बैठ के बातचीत करना। इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड मतलब छोटे बच्चे के सामने। टू हुम, जिससे दे बोथ, वे दोनों, बिलोंग, संबंधित थे। शी वॉज कटिंग आउट अ लिटिल डॉल्स, वो चाइल्ड, चाइल्ड का जेंडर पता नहीं होता, लेकिन अब क्लियर हो गया जेंडर क्या है, वो लड़का है या लड़की, वो लड़की है। शी वॉज कटिंग आउट अ लिटिल डॉल्स, जो काट रही थी एक छोटी सी, क्या नाम है, डॉल्स, डॉल्स की गुड़िया की फ्रॉक को काट रही थी। विद अ लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, एक सीजर, सीजर मतलब कैंची के साथ। देखिए सीजर्स बना होता है, कैसे बना होता है सीजर्स? ऐसे ना, ऐसे, तो ये दो चीजों से मिलके बना होता है, इसलिए इसको इसमें यस जुड़ा रहता है। और एक ही के लिए प्रयोग करने के लिए पेयर का प्रयोग करते हैं। अ लार्ज पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर मतलब कैची, ठीक है, एक जोड़ी कैची, अर्थात ये दोनों अलग अलग एक ही मिलके बनाएंगे। अ लार्ज पेयर ऑफ सीजर मतलब कैची, विद एक बड़ी कैची के साथ क्या कर रही थी? फ्रॉक काट रही थी, किसकी? डॉल्स मतलब गुड़िया की, ठीक है, एक छोटी गुड़िया की। ठीक करके फिर क्या हुआ? सीजर्स, जब कोई चीज दो वस्तुओं से मिलकर बनी हो समान प्रकार की, उसको क्या कहते हैं? उसमें यस लगाते हैं, और जब उसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं उसका हम सदैव प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑफ सीजर्स, कैची की। मिस्ट्रेस, मालकिन से द नाइफ, जो सरदार था वो बोला, दिस डंकी ट्राइज माई टेम्पर, यह जो गधा है ट्राइज माई टेम्पर, मेरे साथ मुझे झल्लाता है, अर्थात यह मुझे बहुत कष्ट देता है और परेशान करता है। ट्राइज माई टेम्पर, मेरा जो सुखसैन है, टेम्पर है, टेम्पर मतलब मनोदशा जो है उसको परेशान कर देता है। विल यू गिव मी सम स्पर्श, क्या तुम मुझे कुछ स्पर्श दोगी, अर्थात नुकीले के, क्या नाम है, नाखूनों से बना हुआ जो टाइप, या कह सकते हैं कि पैर में पहनकर उसको नुकीले से धसा, गधे के शरीर में धसाए जिससे उसको दबाव पड़े, वो आगे बढ़े। स्पर्श दे सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं नुकीले या कटीले जूते, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, स्पर्श। ओ नो, अरे नहीं, सर नाइट, श्रीमान सरदार, द चाइल्ड आंसर, बच्चे ने उत्तर दिया, यू वुड हर्ट द पुअर डंकी, तुम जो डंकी है, जो गधा है, उसको हर्ट मतलब चोटिल कर दोगे। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मतलब ये तो करोगे ही, और इसके अतिरिक्त क्या बात है? यू हैव नो हील्स, तुम्हारे पास एड़ियां नहीं है, टू पुट देम ऑन, जिनमें तुम उनको पहन सको, जिनपे उनको तुम पहन सको। क्रूएल नाइट, क्रूएल नाइट,
तो अब गधा बोल रहा है क्या? एक्सक्लेम्ड, गधा विस्मय किया, विस्मय किया, क्या कि विस्मय किया? क्रूएल नाइट, क्रूएल निर्दयी सरदार, मेक हिम गेट ऑफ, से उतार दो। डियर मिस्ट्रेस, प्रिय मालकिन, आई विल कैरी हिम नो लॉन्गर, मैं उसे और अधिक लेकर नहीं चलूंगा, मैं उसे और अधिक लेकर नहीं चलूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं उसे और अधिक लेकर नहीं चलूंगा। लेट हिम स्टे, से रुकने दो। सेड द चाइल्ड, बच्ची ने कहा, जेंटली, नम्रता पूर्वक। ही हैज नो लेग्स, उसके पास पैर नहीं है। एंड कैन नॉट वॉक, और चल नहीं सकता है। देन व्हाई डिड ही वांट स्पर्स, तब वह स्पर्स मतलब ऐसे नुकीले जूते क्यों चाहता है? जस्ट द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक वैसे ही जैसे संसार है। डियर डंकी, प्रिय गधे, जस्ट द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक वैसे ही जैसे कि संसार है। मतलब आह, आह, आह मतलब अरे, साइड, साइड द डंकी, डंकी ने आह भरी। सम वेज, कुछ तरीके, आर वेरी ट्राइंग, आर वेरी ट्राइंग, प्रयास करने की होते हैं, स्पेशली द वर्ड्स, जैसा कि संसार है। एंड देन इट सेड, तब उसने कहा, क्या कहा? तब इसने कहा, क्या कहा? लेट मी गो बैक। तब इसने कहा, तब इसने कहा, एंड देन इट सेड, तब इसने कहा, नो मोर, और अधिक नहीं, बट थॉट ऑफ द फील्ड्स, लेकिन खेत के बारे में सोचा। वो भी अपने बारे में सोचा, जैसे उसके पास चीजें नहीं थी, उसके पास, सरदार के पास पैर नहीं था, फिर भी वो ऐसी सोचता था। तो गधा भी अपने बारे में सोचा कि मैं भी, बट थॉट ऑफ द फील्ड, उस खेत के बारे में सोचा। इट वुड नेवर सी, जिसको इसने कभी नहीं देखा हो, मतलब देखने की चाह रखता है। एंड द थसल, थसल्स, थसल्स मतलब होता है पौधे, कांटेदार पौधों को खाने का। इट वुड नेवर टेस्ट, जिनको कभी खाया नहीं था। अर्थात जो व्यक्ति नहीं किया रहता है वो करना चाहता है। इट मीन्स द पर्सन, द थिंग्स he had never done, he wants to do it. It means curiosity is always present in the mind of people. अर्थात curiosity means उत्सुकता उपस्थित होती है व्यक्तियों के मस्तिष्क में सदैव। Okay, in this way I have completed the story. Now it's my turn to tell you a story in my own words. So the story is starting from here. There was a poor donkey. एक बेचारा गधा था. So I will not tell you Hindi, okay? I will tell you a story totally in English. So try to learn it. Okay? There was a poor donkey, and he used to go from one place to other place, and he was so poor that he never did any wrong thing. It means he never wagged his tail, or he never tossed his head. He always go from one place to other place simply. And one thing more, he has never done hee-ha. It means he was so simple and he was so gentle in his way. It means he was not doing any wrong work. But there was a man, एक व्यक्ति था, there was a man, he was known as a knight, and that knight was without leg. He has no legs, and he used to went from one place to other place on a four wheels, wooden cart, and wooden cart, and he used to sit on that wooden cart, and that wooden cart was tightened on the body of the donkey, and he used to move from one place to other place through that. One day, when he was moving from there and here, there was some news regarding the night, that there is some information regarding the night, that night was never remembering his own circumstances. It means he was enjoying the life without thinking that he has no legs. Even he, and one thing more, that he has no any pride left in his life, because with a man who was carrying a donkey and he was sitting on the wheels, it means he has no pride to live a better life.
So he was depressed in his life. So one day he told to his mistress that, Madam, I want to have a kind of spurs so that I can teach a good lesson to this donkey. So he is told that, why you want to have spurs when you have no legs? When you have no legs, here you will utilize this type of spurs, and what you will do with it? Then the donkey told that, Madam, I want to not carry this man because he is so jealous with me. He never give his good words to me, so I can't carry him anyhow. So please give me a freedom to be away from him. That's why, after listening his words, the madam told that, no, don't worry, this is the world in which there are many people who always expect to get something big, but they are just expecting just because of curiosity. They have no idea to do anything. They have no reason in their mind to do that kind of work, but even they have curiosity to do. They want to do that kind of work. That's why, after some time, the donkey thought himself that, really, I also used to think about those kind of field in which I have never gone. And one thing more, I always have been trying to taste those kind of tender thistles. It means the plants of thorn. I have never tasted. Even I have curiosity to do that. It means this is the nature of people, to have curiosity about something which they have no. So in this way, the story is completed, and I have told you the final lesson of this story and what is the real moral of this story. In this way, I have told you this story, and I think that you should try to learn this type of story so that you can explain such kind of story in front of anyone, and one day would come definitely when you will be able to speak English language. So with these words, I am going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos, and do comment. Thank you very much.